آج ویو 360 میں شمالی وزیرستان میں تباہ شدہ اسکول تاحال دوبارہ تعمیر کے انتظار میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ افغانستان کے شہر ہرات میں لاک ڈاؤن کے باعث گھریلو تشدد میں اضافہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری دہشت گردی سے جہاں زندگی کے بہت سے شعبے متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر تعلیم، خاص طور پر خواتین کی تعلیم کو انتہائی نقصان پہنچا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بھی دوسرے علاقوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ یہاں پر فوجی آپریشن اور طالبان کی طرف سے تباہ کیے گئے اسکول امن آنے کے بعد بھی دوبارہ تاحال تعمیر کے انتظار میں ہیں۔ مزید تفصیلات شمالی وزیرستان سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ احمد خیل ہے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں واقع یہ اسکول طالبان کی آمد اور آپریشن ضرب عضب کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اگرچہ علاقے میں گزشتہ 3 سال سے آبادکاری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم یہ اسکول اب بھی کھل نہیں سکا۔ یہ اس کو ڈیمیج ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، اس کو کام پہ شروع نہیں کیا ہے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد اس کو یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارا بچوں کا مستقبل ہے، اس کو رحم کریں اس پہ۔ شمالی وزیرستان میں تقریباً 700 اسکول ہیں، جن میں تقریباً 150 میں دوبارہ تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ان میں اکثریت لڑکوں کے اسکول ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا اب بھی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ بہت سے والدین اب بھی طالبان کے خوف سے بچیوں کو اسکول بیچنے سے کتراتے ہیں۔ فیمیل کی اگر آپ بات کریں تو وہ شمالی وزیرستان جو فیمیل کا تعلیم ہے وہ بالکل 0% ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہم نے فاٹا سیکریٹریٹ میں گورنر سے اور KP وزیر اللہ محمود خان سے بھی ہم نے بہت بات چیت کی ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا شمالی وزیرستان کا تعلیم میں۔ امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ تعلیم کی راہ میں کچھ اور رکاوٹیں بھی حائل ہیں، جیسے اسکولوں میں سہولیات کا فقدان اور سٹاف کی کمی۔ پہلے تو امن کا مسئلہ تھا، تو الحمدللہ اب تو امن آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں۔ اکثر ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں زیادہ تر تعلیم نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ سہولت بھی نہیں ہوتے، وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہوتے، گاڑی کا مسئلہ ہوتے، وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوتے۔ شمالی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اسکولوں کی تعمیر کے لیے سلسلہ وار کام شروع کر دیا ہے۔ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن یونٹ کی طرف سے جو اسکولز ہے جو ان سے اپروو ہونے ہیں، اس میں وہ بھی پائپ لائن ہے، تو اس سے جتنی بھی یہ ڈیمیج اسکول ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فار ٹائم بینگ جن ایریاز میں ہمارے اسکول مکمل طور پر ڈیمیج ہے، اس میں ہم رینٹڈ بلڈنگ کے ذریعے ہم ان کو فعال کریں گے۔ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ان علاقوں کو صوبے کے دیگر اضلاع کے برابر لانے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم تعلیم جیسی بنیادی ضرورت کے لیے مناسب عمارتوں اور سہولتوں کی کمی صوبائی حکومت کے وعدوں پر فی الحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، میران شاہ، شمالی وزیرستان۔ نئی دہلی کے بڑے سرکاری ہسپتال کے باہر ڈیرا ڈالے مریضوں میں سے کسی کو اپنی بیماری جاننے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی کو اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے اور کسی کو ہسپتال میں داخل ہونا ہے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ان 5 سرکاری ہسپتالوں میں سے ایک ہے جو صرف کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں سے نمٹنے کے لیے مخصوص ہے۔ نئی دہلی سے رتل جوشی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مریض جو پہلے سے یہاں زیر علاج تھے انہیں دروازے سے ہی لوٹایا جا رہا ہے۔ دلی کے اس بڑے سرکاری اسپتال کے باہر ڈیرا ڈالے ان مریضوں میں سے کسی کو اپنی بیماری جاننے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی کو اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے اور کسی کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال کچھ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ان 5 سرکاری اسپتالوں میں سے ایک ہے جو کووڈ-19 اسپتال میں تبدیل ہو چکے ہیں۔
वो मरीज जिनका इलाज पहले से यहाँ जारी था, उन्हें दरवाजे से ही लौटाया जा रहा है। कोई बात ही नहीं करना तैयार है। जिधर भी जाओ, जिस गेट पे भी जाओ ना, उसी गेट पे उल्टा सीधा बोलते हैं, धक्के देते हैं और बदतमीजी करते हैं, और लेडीज से भी बदतमीजी करते हैं और जेंट्स से भी बदतमीजी करते हैं। ये देखो, ये सब चीज लिखी है, पढ़ के बता के जवाब तो दे दो कम से कम। कुछ अस्पताल कोविड-19 के अलावा दूसरे अमराज के शिकार लोगों से दाखिले से पहले कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट मांगते हैं। टेस्ट करा के रिपोर्ट मिलने तक वक्त लगता है। अमित लिवर पेशेंट हैं। सुबह से 3 अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं। इंतजार का एक एक पल इन पर भारी है। पहले वहाँ धक्के खा के आया हूँ मैं, नीचे से लेके ऊपर तक मेरे से चला जा नहीं रहा है। मेरे को फैटी लीवर भी है, मेरे से बिल्कुल भी 2-3 कदम भी चला नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं बाहर बैठा हुआ था। सिर्फ मरीज ही नहीं, बहुत से डॉक्टर्स भी इस सूरत हाल से परेशान हैं। कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी जो हमारे देश में, भारत में चल रही है, उसमें एडहॉकिज्म और इम्पल्सिव डिसीजन ज्यादा है। इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे क्रूड थ्रेट अगर देखें तो कैंसर के रोगी, डायलिसिस पे जो मरीज थे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रोगी, ऐसे रोगियों की हालत अति गंभीर होगी और मौतें ऐसे रोगियों की ज्यादा हो जाएगी बिना इलाज की वजह से। दिल्ली हुकूमत ने 30 अप्रैल को सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हुक्म दिया था कि वो ऐसे मरीजों को बिना देखे ना लौटाएं जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सभी मेडिकल सर्विसेज जारी रखने का ऑर्डर था। 3 महीने जारी रहने वाले मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान छोटे शहरों और कस्बों से संगीन अमराज के साथ आने वाले इलाज से महरूम रहे। कई मौकों पर ये जानलेवा भी साबित हुआ। ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन हर समय लिया गया। जो डॉक्टर ग्राउंड रियलिटी मेडिकल एक्सपर्ट की तरह ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको लूप में नहीं लिया गया और डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में उनकी भागीदारी ना के बराबर है। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस के मैनेजमेंट के साथ साथ दूसरे मरीजों की मदद के लिए तवील मुद्दती इंतजामात बेहद जरूरी हैं, क्योंकि वबा का खात्मा होने में अभी वक्त है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से ज्यादा हो गई है और कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है, वहीं इंसानों की ज़हनी और जज्बाती सेहत भी मुतासिर हुई है। अफगानिस्तान के इलाके हिरात में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के दौरान घर पर रहने का हुक्म अगरचे बीमारी के फैलाव को कम करने में मददगार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिरात में इस दौरान घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मारजाई अकबरी एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका कहना है कि कोविड से पहले उनके पास आने वाले मरीजों में से कुछ वापस नहीं लौटे। हम तशद्दुद की शिकार खवातीन से अस्पताल में इनफरादी तौर पर मिलते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये राब्ता खत्म हो गया। बहुत सी खवातीन ने फ़ोन पर राब्ता रखा, लेकिन कुछ खवातीन के साथ तो फ़ोन पर भी बातचीत खत्म हो गई। हेरात सूबे में यूं तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तशद्दुद के रिपोर्ट होने वाले केसेस में कमी आई है, ताहम खवातीन के कानूनी मामलात के शोबे की सरबराह कहती हैं कि ये कमी केसेस के रिपोर्ट ना होने के बायस है। माजी में भी हमने खवातीन के मामलात पर कम केसेस रिकॉर्ड किए हैं। हमारे पास तकरीबन 10 खवातीन की शिकायत दर्ज होती थीं, लेकिन अब 2 या 3 ही केसेस हैं और इसकी वजह यह है कि मर्द भी अब घर पर हैं और वो उन्हें तशद्दुद रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देते। हेरात के एक मकामी अस्पताल के सरबराह डॉक्टर आरिफ जलाली कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से घर पर रहने की पाबंदी के बायस सिर्फ हेरात शहर में 100 से ज्यादा तशद्दुद के वाक़यात और खुदकुशी की कोशिशें हुई हैं। लोग अस्पताल आने से डरते हैं। हमारे पास मरीजों की बड़ी तादाद हुआ करती थी। हमारे पास 700 बिस्तर थे और अब 300 रह गए हैं। हमने ऐसे 20 केसेस देखे हैं जहां औरतों को मारा पीटा गया था और करीबन 75 खवातीन ने या तो खुदकुशी की कोशिश की है या उन्हें जहर दिया गया है। माहिरीन कहते हैं कि घर पर रहने की पाबंदी ने घरों में तनाव में इजाफा किया है और करंतना के दौरान खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद में इजाफे की एक और बड़ी वजह मुआशी दबाव और बहुत से कारोबारों का बंद हो जाना भी है। खलील नूरजई के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। facebook.com/urdu VOA और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa।
शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन वो 3 इंडस्ट्रियल रियासतें हैं जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के सदारती इंतखाब में बमुश्किल कामयाबी मिली थी, और यही वो 3 रियासतें हैं जहां पर इस साल डेमोक्रेट्स कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन रियासतों में बहुत सी आबादियां मौजूद हैं जहां हालिया कुछ दहाइयों के दौरान मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में अच्छी तनख्वाहों वाली मुलाजमतें गायब हो चुकी हैं, और कोरोना वबा की वजह से इस सूरत हाल में मजीद बिगाड़ पैदा हुआ है। रियासत विस्कॉन्सिन से देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ये रिपोर्ट। दरिया के किनारे कागज की ये वसीओ अरीज मिल विस्कॉन्सिन रैपिड्स के इलाके की सबसे तारीखी और शनाख्ती अलामात में से एक है। इसमें विस्कॉन्सिन रैपिड्स के इलाके की जान है। ये आलमी जंगों और अजीम मुआशी बहरानों के दौर में भी यहाँ थी, और ये ठोस है। इस मिल ने विस्कॉन्सिन के रियासती अवामी नुमाइंदे स्कॉट क्रुक के खानदान की कई नस्लों को रोजगार मुहैया किए रखा है। उस वक्त भी जब इसके अरूज के दौर में हजारों लोग यहाँ काम करते थे, और आज भी जब इस मिल के आखिरी लगभग 900 वर्कर्स मौजूदा मालिकान से अपनी तनख्वाहें वसूल करते हैं। ये मिल इस जुलाई में बंद होने की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह उन कारोबारों की जानिब से तलब में कमी है जो अपने इश्तहारात के लिए इसका बना कागज इस्तेमाल करते थे। आपको एक धचका लगता है ये सुनकर कि ये प्लांट अपनी 120 साल तारीख में पहली बार बंद होगा। इससे हजारों दूसरे वर्कर्स भी मुतासिर होंगे, जैसे लॉरा डिलानी जो अपने खानदान का लकड़ी काटने का कारोबार संभालती हैं। वो हमारी लकड़ी लेने वाले सबसे बड़े सप्लायर्स में से थे। अब उनके पास कई टन लकड़ी पड़ी है जिसका कोई गाहक नहीं। उन्हें अपने मुलाजमीन और नए खरीदे गए औजारों की अदायगी की फिक्र है। ये मशीन $7 लाख से जायद की मालियत की है। काम के बगैर ये खुद अपनी कीमत की अदायगी तो नहीं कर सकती। इस पेपर मिल की किस्मत रस्ट बेल्ट कहलाने वाली वस्त मगरबी अमरीकी रियासतों में एक आम कहानी है। इस इलाके में प्लांट्स बंद हो गए और बहुत से अमरीकी जो कभी गाड़ियां और रेफ्रिजरेटर्स जैसी मसनूआत बनाने की मुलाजमतों से एक मुतवसत तबके की आमदनी कमाते थे, बेरोजगार हो गए। इन्हें सियासतदानों की जानिब से नजरअंदाज किए जाने की शिकायत है। हम जो करते हैं वो बहुत अहम है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा भुला दिया जाता है। सदर ट्रंप ने सन 2016 में विस्कॉन्सिन में इस वादे की बुनियाद पर बमुश्किल कामयाबी हासिल की थी कि वो अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग में खत्म होने वाली मुलाजमतों को वापस लाएंगे। मुझे लगता है कि वहाँ उन्हें सारा वक्त एक मुश्किल लड़ाई का सामना रहा है, और अगर उन्हें अपना काम करने दिया जाता तो वो इसे बहुत अच्छा करते। चीन और दूसरे ममालिक के साथ तजारती जंगों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में मुलाजमतें वापस न लौट सकीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतवक्के उम्मीदवार जो बाइडेन को विस्कॉन्सिन के हालिया पोल्स में ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। ऐसा नहीं कि वोटर्स जो बाइडेन के लिए बहुत पुरजोश हैं, बल्कि वो सर ट्रंप से बदजन हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैरी बर्डन कुछ वोटर्स के जहनों से सदारत के लिए ट्रंप की बुनियादी तोजी खत्म होती देखते हैं। मेरे ख्याल से असल सवाल यह है कि क्या लोगों को एतमाद है कि मुलाजमतों के सिलसिले में ट्रंप उन्हें सही समत में लेकर जाएंगे, या ये उन वादों को पूरा करने में नाकामी की एक अलामत है जो उन्होंने 4 साल पहले किए थे। इस मिल के लिए नए मालिक की तलाश में मसरूफ रिप्रेजेंटेटिव स्कॉट क्रुक को इस वक्त खुद दोबारा इंतखाबी मार्का दरपेश है, जबकि सदर ट्रंप को वबा से निपटने के लिए अपने इक़दामात पर तनकीद का सामना है। स्कॉट क्रुक रियासती मुकन्नना में विस्कॉन्सिन रैपिड्स के इलाके की नुमाइंदगी के लिए 40 सालों में मुंतखब होने वाले पहले रिपब्लिकन हैं। मेरे लिए इंतखाब अभी भी सदर ट्रंप का साथ है, लेकिन अब उन चीज़ों के बायस ये चॉइस कुछ कमज़ोर हो गई है जो यहाँ असरअंदाज होती हैं। इसी वजह से हमने ट्रंप इंतज़ामिया पर इतना जोर डाला है कि वो यहाँ मुदाखलत करने की कोशिश करें, क्योंकि अब इन बातों से ज़्यादा कुछ एक्शन का वक्त है। विस्कॉन्सिन रैपिड्स से चंद घंटे की मुसाफत पर ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन की एक नई फैसिलिटी ने 13,000 मुलाजमतें पैदा करने का वादा किया था। ताहम आलमी वबा के फैलने से भी पहले कंपनी सिर्फ 600 लोगों को ही मुलाजमत दे पाई थी। केन फराबो के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
امریکہ اور چین کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے ہانگ کانگ کو حاصل خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا اور ایک قانون کے تحت چینی اہلکاروں پر کئی پابندیاں عائد کی۔ ان اقدامات سے صدر ٹرمپ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے مقابلے میں چین کے حوالے سے زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں۔ چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے صدر ٹرمپ نے منگل کے روز اپنی انتظامیہ کی جانب سے تازہ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ آج میں نے چین کو ہانگ کانگ کے لوگوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات اٹھانے پر جواب دہ بنانے کے لیے ایک قانون اور ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ہانگ کانگ اٹانومی ایکٹ نامی قانون کے تحت ایسے افراد اور اداروں پر پابندیاں لاگو ہوں گی جو ایسے چینی اہلکاروں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں جو ہانگ کانگ میں چین کے نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ میں ملوث ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اب بیجنگ کو ہانگ کانگ کے معاملے پر قائل کرنے کا وقت گزر گیا ہے اور اپنے برتاؤ کے لیے اسے قیمت ادا کرنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ کے حکم نامے سے ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور اب اسے بھی چین کی طرح ہی سمجھا جائے گا۔ صدر چین کے معاملے میں اپنے آپ کو نومبر کے انتخابات میں اپنے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے مقابلے میں سخت گیر رہنما کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی پوری پیشہ ورانہ زندگی چین کی کمیونسٹ پارٹی اور ان کی مشکلات کے وقت میں ایک تحفہ رہی ہے۔ جو بائیڈن چین کے ساتھ تجارتی جنگ شروع کرنے پر صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں۔ چین مستقبل کی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے اور ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے بیٹھے ہیں۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں چین ایک اہم مسئلہ ہوگا۔ اس مسئلے پر دونوں ہی غیر محفوظ ہیں مگر شاید صدر کچھ زیادہ ہیں۔ صدر نے جنوری میں چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا مگر بہت سے معاملات جن پر اب صدر ناخوش ہیں وہ اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں، جیسے زرعی اجناس کی خرید و فروخت جو کئی ریاستوں میں صدر کے لیے اہم ہے۔ سر ٹرمپ نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ بیجنگ کے ساتھ تعلقات کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے معاملے پر بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور انہیں تجارتی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے بارے میں چین سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے تائیوان کو میزائل فروخت کرنے کے معاملے پر چین نے امریکی دفاعی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن پر تعزیرات عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیڈ کروز پر پابندی عائد کر دی ہے جو چینی پالیسیوں کے ناقد مانے جاتے ہیں۔ پیٹسی ویراکوساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ انگلینڈ نے اپنے نئے 5G سپر فاسٹ موبائل نیٹ ورکس کے لیے ہواوے کمپنی کے بنے ساز و سامان کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سے برطانوی حکومت نے صرف 6 ماہ پہلے ہواوے کو اجازت دینے سے متعلق دیا گیا اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ برطانیہ کا یہ اقدام امریکہ کا ہواوے پر پابندیوں کے دباؤ کے نتیجے میں اٹھایا گیا ہے۔ اس پر چین نے برطانیہ کو مستقبل میں تجارتی تعلقات میں ممکنہ نتائج سے بھی خبردار کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یہ رپورٹ۔ برطانوی پالیسی کے تبدیل ہونے کا مطلب ہے کہ 2020 کے آخر سے تمام موبائل سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر ہواوے سے نئے سامان کی خریداری اور استعمال پر پابندی ہوگی اور 2027 تک ہواوے 5G ٹیکنالوجی کو مکمل طور سے ہٹانا ہوگا۔ یہ فیصلہ مئی میں امریکہ کی جانب سے ہواوے پر ان پابندیوں کے بعد کیا گیا ہے جن سے امریکی کمپنیز ہواوے کو اہم سیمی کنڈکٹر چپس فراہم نہیں کر سکیں گی۔ ہواوے کی سپلائی چین کے لیے پیدا ہونے والی اس غیر یقینی صورتحال کے سبب برطانیہ اب اس معاملے میں زیادہ پر اعتماد نہیں کہ وہ مستقبل میں ہواوے کے 5G ساز و سامان پر انحصار کر سکے۔ ہانگ کانگ میں بیجنگ کے کریک ڈاؤن اور کورونا کی عالمی وبا پر چین کے رد عمل کے باعث پہلے ہی برطانیہ اور چین کے مابین تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، لیکن سائبر سیکیورٹی کے تجزیہ کار جیمز سیلون سمجھتے ہیں کہ ہواوے پر پابندی کے محرکات کچھ اور ہی ہیں۔ چین کی طرف سے محسوس کیے جانے والے خطرے کے لحاظ سے در حقیقت کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی ہواوے کے حوالے سے سمجھے جانے والے بدنیت عزائم کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہواوے کے چینی حکومت سے قریبی روابط کی وجہ سے امریکہ کو ہواوے سے قومی سلامتی کا خطرہ لاحق ہے اور خدشہ ہے کہ ہواوے کے ساز و سامان جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکیں گے۔
हुआवे ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक तिजारती हरीफ को कुचलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी इंतजामिया ने अपने मद्दे मुकाबिल में नाजायज गलती निकालने का फैसला कर लिया है। बरतानिया हुआवे पर पाबंदी आयद करने वाला 5वां मुल्क है। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान चीनी कंपनी हुआवे पर पाबंदियां लगा चुके हैं। हुआवे ने कहा है कि इस इकदाम से बरतानिया डिजिटल सुस्त लेन में आ जाएगा, जबकि बीजिंग ने इसके ज्यादा बड़े मुआशी असरात की तरफ इशारा किया है। इससे ये पेश गोई भी होती है कि बरतानिया में चीनी सरमायाकारी कितनी महफूज है। चीन इस पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। चीनी तज्जियाकार स्टीव संग कहते हैं कि बीजिंग का गुस्सा एक खतरनाक अलामत है। एक कंपनी चाहे वो सरकारी मिल्कियत की हो या निजी, इसे चीन की हुकूमत की एक ही तरह की हिमायत हासिल है, जिसका मतलब है कि इस कंपनी की हिमायत के लिए चीनी रियासत के इख्तियार में जो कुछ भी है वो इसे बरोए कार्ड लाएगी। ये इस कंपनी को इंतहाई गैर मामूली बना देता है। बरतानिया की तरफ से हुआवे पर यह पाबंदी अमरीकी पॉलिसियों की फतह है। वाशिंगटन को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे मगरबी इत्तेहादी भी इसकी पैरवी करेंगे। हेनरी रिजवल के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में दाखिल हों तो आपका ऑर्डर लेने के लिए, खाना पकाने के लिए और पैसे लेने का काम इंसानों की बजाय रोबोट्स कर रहे हों? शायद कोरोना बहरान की वजह से ये तस्वर हकीकत बन जाए, क्योंकि ये रोबोट्स इंसानी मेलजोल की ज़रूरत को ख़त्म करके महफूज अंदाज से रेस्टोरेंट का कारोबार जारी रखने के लिए एक मौसर ज़रिया साबित हो सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि रियासत कैलिफोर्निया का एक जदीद खुदकार ढाबा या छोटा रेस्टोरेंट है। यहाँ नस्ब स्क्रीन पर आप अपना ऑर्डर दर्ज करें तो काउंटर के आगे और पीछे मुतय्यन रोबोट्स आपका हुक्म बजा लाने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। विपिन जैन इस कारोबार के मालिक हैं। ब्लेंडेड इंसानी अमल दखल के बगैर मुकम्मल तौर पर खुदकार रोबोटिक निज़ाम है जो आपकी पसंद के मुताबिक फलों से ताज़ा, सेहत बख्श और खुश जायका मशरूबात बनाता है। यहाँ इंसानों का अमल दखल सिर्फ इन मशीनों में फल और दीगर अज्जा डालने तक महदूद है जो मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोबोट्स के तैयार करदा जूसेस के जायके की बात की जाए तो वो किसी तौर भी इंसानी काबिशों से कम नहीं। ये वाहिद तरीका है जो इंसानी मेलजोल की जरूरत से बिल्कुल पाक और महफूज है। खुदा न ख्वास्ता अगली बार कोरोना जैसा कोई बहरान हुआ तो आप कारोबार और खाने पीने की सहूलत शट डाउन किए बगैर जारी रख सकते हैं। इनसे मिलिए। फ्लिपी नामी इस रोबोट को दुनिया के पहले किचन मददगार होने का एजाज हासिल है जो वक्त के साथ नई महारतें सीखने की सलाहियत भी रखता है। कैलिफोर्निया ही के एक रेस्टोरेंट में फ्लिपी आपके लिए बर्गर्स बनाने में मसरूफ है। साथ में फ्रेंच फ्राइज पसंद करें तो वो भी हाजिर हैं। कोरोना वबा की वजह से इस टेक्नोलॉजी की इस्तेदाद और डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है। रोबोट्स खाना पकाने के माहौल को महफूज बनाते हैं। ये काम की रफ्तार जारी रखते हैं, खास तौर पर कम स्टाफ होने की सूरत में। गो के कोरोना शटडाउन के दौरान खाना पीना ऑर्डर करने के खुदकार अंदाज में इजाफा हुआ है। कुछ अफराद समझते हैं कि ये तब्दीली महज आर्जी है और रेस्टोरेंट्स के कारोबार में रोबोट्स कभी इंसानों की जगह नहीं ले सकते। मुझे यकीन नहीं कि ये बहुत कामयाब होंगे। शायद सिर्फ कोरोना बहरान के दौरान हो, लेकिन फिर जितनी तेजी से ये आए उतनी तेजी से चले भी जाएंगे। जब खाना पकाने और उसे पेश करने को मशीनी अमल बना दिया जाए तो हम खाना खिलाने और खाने के इंसानी तजुर्बे को खो देते हैं। आप अपनी जिंदगी में रोबोट्स की दखलंदाजी पसंद करें या ना करें, लेकिन कोरोना बहरान ने उनकी अफादियत और अहमियत बढ़ा दी है। इस वबा के खात्मे के बाद नया नॉर्मल कैसा होगा और क्या उस नए नॉर्मल में रोबोट्स हमारी जिंदगियों का मुस्तकिल हिस्सा होंगे, अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और ये था हमारा आज का व्यू 360। आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं facebook.com/urduvoa के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। नीलोफर मुगल को इजाजत दीजिए।